बाकी सबके तो ठीक होते हैं। और आगे देखना जरा सब नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम and good afternoon to all of you. I hope you all can hear me. Is it so? I think participation today is very low. Yes, sir. Okay. Never mind. Okay. आज हम लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे आईवी मिक्सर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेशी केयर हॉस्पिटल्स हैं एंड ऑल दी टेशी केयर हॉस्पिटल्स स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव दिस फैसिलिटी ऑफ IV mixers or parenteral nutrition services. I hope you have gone through this topic of IV mixers in hospital pharmacy each semester in aseptic dispensing and IV mixers. And then we have a topic of safe intravenous use where we also discuss about the hazards associated with IV mixers or parenteral therapy and how we can ensure the safe and efficacious use of parenteral dosage form. So before going into detail for the calculations, do keep in mind these calculations are very important, especially when you apply to any foreign hospitals, even in Gulf or KSA. Say they do ask about these calculations. Even in Canada or NAPLEX, there is a specific portion for these calculations, and these calculations are very frequently asked for licensure examination. So even in Pakistan, many Teshi Care teaching hospitals like Services Hospital, Shaukat Khana Memorial, Children's Hospital, Jinnah Hospital, they are initiating these specialized pharmacy services. You know, dispensing is a traditional pharmacy services, and when we talk about the specialized pharmacy services, they do include like clinical ward round, pharmaceutical care planning, and IV or aseptic dispensing services. And inside aseptic dispensing services, on one side you will initiate like antibiotic reconstitution dilution services, and on the other hand parenteral nutrition services. So when we talk about parenteral nutrition, it's basically two words: parenteral, away from impairing, and nutrition, you know, just like all the nutrients which are required by your body. So what is parenteral nutrition? It's an intravenous administration of sufficient nutrients above the basal requirement. That is, one thing is intravenous administration of, secondly, sufficient nutrients above the basal requirement or basic metabolic needs of a person to achieve positive nitrogen balance or growth or anabolism. I think some of you haven't muted their mic yet. Let me check. सर ये रिपीट करते हैं सर आप इससे जी ओके होल्ड ऑन सर इंटरप्शन बहुत हो रही है जी मैं माइक उन्होंने म्यूट कर दिया है जिनकी वजह से हो रही थी काइंडली अपना माइक म्यूट रखें ओके तो हम बात कर रहे थे parenteral nutrition की parenteral nutrition क्या है आपको कंपोनेंट सेम में रखें when you are going to define number one it's an intravenous administration of sufficient nutrients above the basic metabolic needs of a person to achieve positive nitrogen balance or anabolism or growth
Fourth component is for those patients who are unable to achieve or who are unable to tolerate any form of enteral feeding. Okay, so just remember 4 things when you are going to define parenteral nutrition. First, intravenous administration of sufficient nutrients above the basic metabolic needs to achieve positive nitrogen balance, anabolism, or growth. And third one, for those patients who are unable to achieve, who are unable to tolerate any form of enteral feeding. तो ये parenteral administration है of nutrients, basic metabolic needs जो है उससे ज्यादा होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस या ग्रोथ या एनाबोलिज्म, ये सारी चीजें एक ही है. एंड इंडिकेशन क्या है? सारे वो पेशेंट जो किसी भी तरह से इंटरनली फूड को या न्यूट्रिशन को टॉलरेट नहीं कर सकते. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया कि जी आपकी पैरेंटल न्यूट्रिशन जब आपने डिफाइन करना है तो वो क्या है. अब डेफिनेटली अगर आप इसकी देखें, ये एक्सपेंसिव है, इसमें टेक्निक्स रिक्वायर्ड होती हैं, एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं. ठीक. अब इसकी अगर आप बात करें कि गोल्स या इसकी इंडिकेशन की बात करें या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, मैंने ऑब्जेक्टिव्स का क्या बताया था? ग्रोथ होनी चाहिए. पहला तो ये है कि एनाबोलिज्म, पेशेंट वेट गेन हो. दूसरे नंबर पे अगर वेट गेन नहीं हो रहा तो वेट लॉस ना हो. आइडियल इज टू गेन वेट, एंड इफ यू आर नॉट getting this objective, at least aim or design your nutrition in such a way to prevent catabolism. अब आप जानते हैं न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है. अब आप आजकल के दौर में अगर आप देखें कोविड-19 है तो किन पेशेंट में मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी के चांसेस ज्यादा हैं? जिनकी इम्यूनिटी वीक है. जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनमें ये डिजीज की जो है कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा है. इसी तरह आप कोई सी भी डिजीज उठा के देख लें. कल हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात कर रहे थे. किन पेशेंट्स में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं? जिनमें सेप्सिस हो, यानी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. वहां भी हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे कि मेल न्यूट्रिशन नहीं होने देनी, फाइट करता है. कैंसर के पेशेंट की नंबर 1 रीजन क्या है डेथ की? सेप्सिस की वजह से, सेकेंडरी इंफेक्शन की वजह से पेशेंट्स मर जाते हैं. जब कीमोथेरेपी चल रही होती है पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, डेथ हो जाती है. ठीक है. इसलिए जो हॉस्पिटल में प्रोग्नोसिस का रेट है अनफॉर्चुनेटली क्यों कम है? बिकॉज पेशेंट्स व्हेन दे आर फाइटिंग विद डिजीज, their nutrition is compromised, they are malnourished, their immune system becomes weak. जैसे वीक होता है तो सेकेंडरी इंफेक्शंस आ जाती हैं, रेट ऑफ केयर स्लो हो जाता है और डेथ के चांसेस या मोर्बिडिटी मॉर्टिलिटी दोनों बढ़ जाते हैं. ठीक है. न्यूट्रिशन के ऊपर पहले पैरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर इतना फोकस नहीं होता था हॉस्पिटल्स में. 1970s में एक जर्नल में, एक हॉस्पिटल फार्मेसी की जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, a skeleton in hospital closet. उसमें ये बेसिकली था कि जी हॉस्पिटल में प्रोग्नोसिस या मोर्बिडिटी मॉर्टिलिटी है वो क्यों होती है कि डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर तो बहुत फोकस होता है लेकिन पेशेंट की न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज हो जाती है. इंटीरियल तो ठीक है, वो देख रहे होते हैं, मेन्यू प्लान कर रहे होते हैं, ये देना वो देना, लेकिन ऐसे पेशेंट जो इंटीरियरली कुछ नहीं दे सकते, उनकी न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं होती तो वो तो पहले ही बड़े वीक होते हैं. तो जैसे ही उनकी डिजीज फाइट रेट बड़ा कम हो जाता है और सेकेंडरी इंफेक्शन की वजह से डेथ हो जाती है. ठीक हो गया. अब पहले मैंने आपको आइडियल ऑब्जेक्टिव क्या है कि पेशेंट वेट गेन करे डिस्पाइट ऑफ हैविंग एनी डिजीज. अगर वेट गेन नहीं कर रहा तो रिड्यूस ना करे. रिड्यूस कब करता है? जब कैटाबोलिज्म होती है, पेशेंट की अपनी प्रोटीन मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाती है.
जब ये चीजें होती हैं तो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर उसके ऊपर जो मेडिसिन कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट, जो हॉस्पिटल कास्ट आती है, फिजिशियन कास्ट आती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट इज कॉम्प्रोमाइज। हम हर बात में ये कहते हैं ना कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब बात होती है तो ओवरऑल वहाँ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब इंडिकेशन, टीपीएन की जरूरत क्या है, क्यों है, मैंने आपको एक बेसिक बताया। वो सारे पेशेंट जो किसी भी इंटरनल रूट को टॉलरेट नहीं कर रहे, उन सब में टीपीएन की जरूरत होती है। अब अगर इंडिकेशंस देखें तो बहुत सारी इंडिकेशंस हैं, बच्चों से लेके एडल्ट में। पीडियाट्रिक्स में अगर आप देखें तो जितने भी प्री टर्म या प्री मेच्योर बेबीज होते हैं हु आर बॉर्न विद लो बर्थ वेट लेस देन 1.2 ग्राम, 1.2 किलोग्राम, और वो ओरल फीड टॉलरेट नहीं कर रहे, उनको फॉरन टीपीएन की जरूरत होती है। या ऐसे पेशेंट जो प्री मेच्योर हैं या फुल टर्म है विद लो बर्थ वेट और वो ओरल मदर फीड टॉलरेट नहीं कर रहे, उनको फॉरन टीपीएन की जरूरत होती है, क्योंकि उनमें तो एनर्जी रिजर्व ही नहीं होता। स्पेशली जो प्री टर्म होते हैं ना, who are delivered after 7 months of pregnancy, they don't have adequate energy reserves. जो एनर्जी डिपॉजिट होता है वो 8 और 7 और 8 मंथ में बेसिकली सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं। फिर एनर्जी डिपोजिशन होती है कि जैसे ही आफ्टर डिलीवरी कुछ स्टार्वेशन हो तो वो बेबी उसको टॉलरेट कर सके। फिर इसके अलावा और क्या इंडिकेशन है, कौन से पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकते, जिनमें ये जो कैंसर कीमोथेरेपी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। आप जानते हैं जैसे कीमोथेरेपी चल रही होती है उसका बड़ा साइड इफेक्ट क्या है, न्यूजिया, वॉमिटिंग सीवियर होती है, वो कुछ भी टॉलरेट नहीं कर सकते। तो कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट अगर शौकत खानम या किसी ऑन्कोलॉजी वार्ड में जाएं तो दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग कैंसर कीमोथेरेपी they are required to have parenteral nutrition. Then बर्न्स के पेशेंट, सीवियर बर्न्स के पेशेंट हैं, वो एनपीओ जाते हैं, नथिंग पर ओरल। फिर ऐसे पेशेंट जिनकी जीआईटी सर्जरी हुई होती है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लॉकेज हुई होती है, ठीक है, उन पेशेंट में इसकी जरूरत होती है। तो अगर आप डिटेल में जाएं तो बहुत सारी इंडिकेशंस आपको मिलेंगी कि ये क्यों जरूरी होता है। देन टाइप्स की अगर हम बात करें पेरेंटल न्यूट्रिशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेशन इसको हम दो टाइप्स कह सकते हैं, पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन PPN and total parental nutrition or TPN. I repeat, on the basis of administration, partial parental nutrition and total parental nutrition. Partial parental nutrition mean कि पेशेंट ओरली कुछ ले रहा है but it's not sufficient to meet his or her requirements. यानी ओरली वो ले रहा होगा लेकिन वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। और total mean nothing is being administered orally, all is being administered via parental route, then it will be called as TPN. So there are two types on the basis of administration, either partial or total. Then on the basis of route of administration, इसको दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, सेंट्रल पेरिफेरल रूट एंड पेरिफेरल parental nutrition. Central peripheral route when it's administered by superior or inferior vena cava or subclavian vein, central administration. और peripheral route से किसी से दे रहे होंगे उसको हम कहते हैं peripherally administered parenteral nutrition. Again सेंट्रल और पेरिफेरल रूट का मैंने आपको मेरिट्स बताए थे पहले। सेंट्रल रूट जब पेरिफेरल रूट एक्सेसिबल ना हो या हाइपरटोनिक फ्लूइड देना हो तो सेंट्रल रूट से देते हैं। हाइपरस्मोलर
up to 2500 milliosmol can be administered by central route. Peripheral route, you can administer up to 900 milliosmol, maximum 900. Your isotonic solution, that is normal saline, is 310 milliosmol per liter. So osmolarity is one of the determining factor for peripheral and central route. Then thirdly, सेंट्रल में कितना दे सकते थे? 2500 milliosmol per liter तक, ठीक है। और पेरिफेरल में अप टू 900 मिलियास्मोल, 300 टू 900 मिलियास्मोल पर लीटर तक आप कोई भी आईवी एडमिक्सर दे सकते हैं, चाहे वो टीपीएन है या कोई भी एडमिक्सर बना है। अब तीसरे वे क्लासिफाई करना क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूलेशन। फार्मूलेशन में इसको एक होता है, इसको कहते हैं TNA, टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सर। TNA, total nutrient admixture, when all the nutrients are mixed in one container. इसको और नाम भी दिए जाते हैं, कहते हैं all in one भी कहते हैं, या 3 in 1 भी कहते हैं, या lipid based parenteral nutrition भी कहते हैं। I repeat, एक टाइप है फॉर्मुलेशन की बेस पे, उसको आप TNA या टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सर कहते हैं, 3 in 1 भी कह सकते हैं, ऑल इन 1 भी कहते हैं, और लिपिड बेस्ड पैरेंटल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। व्हेन ऑल न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एक्वस एंड नॉन एक्वस लाइक लिपिड इमल्शन, ऑल एवरीथिंग, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगी, प्रोटीन्स होंगी, लिपिड्स होंगी, विटामिन्स होंगी, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सारे एक कंटेनर में मिक्स होंगे, उसको कहते हैं टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सर या ऑल इन वन, लिपिड भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप इज कॉल्ड 2 in 1 और ग्लूकोज बेस्ड पैरेंटल न्यूट्रिशन। 2 in 1 मीन कि सारे एक्वस कंपोनेंट एक कंटेनर में होंगे और लिपिड इमल्शन प्लस लिपिड सॉल्युबल विटामिन सेपरेट कंटेनर में होंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो वाई साइड पे इकट्ठे एडमिनिस्टर किए जा रहे होंगे। आई रिपीट, ऑल एक्वस बेस्ड components will be in one container and oil based components, for example lipid emulsion and lipid soluble vitamin, will be in small container, that's also known as piggyback method. At the time of administration, site of administration, y side पे वो इकट्ठे होकर पेशेंट को दिए जा रहे होंगे। मैं बाद में बताऊंगा कि ये TNA कब बनाया जाता है, और 2 in 1 या ग्लूकोज बेस्ड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज द मेन कंपोनेंट इन एक्वस बेस्ड कंटेनर। इसमें स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द रीजन कि जब एक्वस और नॉन एक्वस को मिक्स करते हैं, आपको पता है क्या होता है, पॉलीसेंस हो सकती है, इमल्शन ब्रेकिंग हो सकती है, एक बड़ा इश्यू होता है स्टेबिलिटी का। इसलिए सारे एक्वस सेपरेट होते हैं एक कंटेनर में और नॉन एक्वस लिपिड बेस्ड सेपरेट होते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैंने आपको बताया है कि टीपीएन या पैरेंटल न्यूट्रिशन की टाइप्स आप 3 तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, टीपीएन और partial parental nutrition. Second, on the basis of method of administration, site of administration, centrally administered parental nutrition and peripherally administered parental nutrition. Third, you can classify on the basis of formulation, TNA, all in one, 3 in 1 या lipid based parental nutrition. दूसरा क्या होता है, ग्लूकोज बेस्ड पैरेंटल न्यूट्रिशन और 2 in 1, जिसमें सारे एक्वस एक साइड पे और लिपिड इमल्शन प्लस लिपिड सॉल्युबल विटामिन स्मॉल पिगी बैग में सेपरेट होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हमने रूट्स की बात कर ली, अब जाते हैं हम कंपोनेंट्स क्या होते हैं पैरेंटल न्यूट्रिशन के। जस्ट लाइक इंटरनल न्यूट्रिशन, all those components you have to administer parenterally. अब आप जानते हैं न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं, कौन कौन से हैं,
आपकी carbohydrates as a source of energy, lipids as a source of energy, and a source of lipid soluble vitamins. Plus lipid is an important component of your cell wall. जितने इम्यून सेल्स हैं, सारे सेल्स हैं, उनकी सेंसेस जब होती है तो लिपिड्स चाहिए. थर्ड major component of your nutrition is proteins, amino acids. They are the building blocks of all the body proteins. These are important for metabolism. Used as a source of energy. Protein should only be used as a source of amino acids, anabolism. ठीक है. फिर उसके अलावा आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, देन ट्रेस एलिमेंट लाइक जिंक, मैग्नीज. उसके अलावा आपके पास क्या होंगी, विटामिन्स, बोथ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स. अब ये तो की कंपोनेंट्स कुछ आपके होंगे जब आप पीपीएन की बात, पेरेंटल न्यूट्रिशन की बात कर रहे होंगे कि आपकी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की जाए तो पेरेंटल न्यूट्रिशन की दो सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहते हैं. एक होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी सोर्सेस, नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी सोर्सेस, जिसमें आपकी कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आ जाते हैं. नॉन नाइट्रोजनस क्यों? क्योंकि इनमें अमाइनो एसिड या प्रोटीन नहीं है. एंड नाइट्रोजनस सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन. लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा, कभी भी प्रोटीन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं किया जाना चाहिए. आयरली lipids and carbohydrates are used as a source of energy and proteins are used as a building blocks for anabolism. और जब एनाबोलिज्म हो रही होती है तब भी एनर्जी चाहिए. बॉडी को अपने जो होमियोस्टेसिस है, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, रेस्टिंग कंडीशन में भी एनर्जी चाहिए. हार्ट बीट कर रहा है, किडनी काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, सो बॉडी नीड एनर्जी. Secondly, body need more energy when it's going to synthesize tissue or anabolism. तो प्रोटीन जो होती है वो बेसिकली एनाबोलिज्म के लिए होगी. अब एज अ रूल ऑफ थंब, no one in clinicians or in hospitals know about this fact that if you administer 1 gram of protein, you have to administer at least 25 kilocalories of non-nitrogenous energy. I repeat, if you are administering 1 gram of protein parenterally to a patient, at least administer 25 kilocalorie of non-nitrogenous energy. यानी अगर एक पेशेंट को 1 ग्राम प्रोटीन मिल रही है ना आईवी के थ्रू, तो कम से कम उसको 25 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से देनी है. तब वो जो प्रोटीन होगी ना वो बर्न नहीं होगी, वो बॉडी में असिमिलेशन के लिए यूज होगी. मैंने आपको पहले बताया था कि गोल क्या होता है पेरेंटल न्यूट्रिशन का, एनाबोलिज्म. अगर एनाबोलिज्म या वेट गेन नहीं हो रही तो कैटाबोलिज्म भी रोकनी है. सेकेंडरी गोल क्या होता है, इफ यू आर नॉट अचीविंग वेट गेन, एटलीस्ट प्रिवेंट कैटाबोलिज्म. अब कैटाबोलिज्म कैसे प्रिवेंट होगी, जब प्रोटीन बर्न नहीं होगी. आप जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं नो यूज, वो एनर्जी में बर्न हो जाएगी या फिर बॉडी की भी यूज हो जाएगी. तो अक्सर हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा अमाइनोविल जस्ट एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं. अमाइनोविल या अमाइनोप्लाज्मिल, ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हैं अमाइनो एसिड्स के, प्रोटीन के ग्लास कंटेनर में. उनको पता नहीं होता, वो समझते हैं कि यही पेरेंटल न्यूट्रिशन है. वो एक साइड पे ये कंटेनर लगा देते हैं, दूसरी साइड पे डेक्सट्रोज लगा देते हैं, बट दे डोंट नो द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स कि अगर आप प्रोटीन 1 ग्राम दे रहे हैं तो कम से कम 25 किलो कैलोरी एनर्जी आपने कार्बोहाइड्रेट या लिपिड से देनी है, अदरवाइज ये प्रोटीन भी बर्न हो जाएगी, इसको कोई फायदा नहीं. समझ रहे हैं? तो जब भी हमने कैलकुलेशन करनी है ये बेसिक रूल हमने ज़हन में रखना है.
1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 25 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी। या अगर आप शार्जल देखें या कंप्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू देखें तो उसमें लिखा होता है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 125 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी। यानी जो 1 ग्राम यानी जो प्रोटीन होती है उसमें 1/6 होती है आपकी नाइट्रोजन। या तो प्रोटीन के लिए 1 ग्राम प्रोटीन के लिए 25 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी, या 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 125 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी। तो पहली वाली इक्वेशन आप ज़हन में हमेशा रखिएगा जब भी आपने टीपीएन कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं जी पाकिस्तान में। पहले हम बात करें कि आपने हॉस्पिटल में आपको फिजिशियन कहते हैं कि जी हमने मुझे इस पेशेंट के लिए पेरेंटल न्यूट्रिशन बना के दें, तो वो आपको एक पेरेंटल न्यूट्रिशन का ऑर्डर देगा, मेडिकेशन ऑर्डर जिस तरह होता है टीपीएन ऑर्डर बना के देगा कि उसको क्या चाहिए। वो सारी रिक्वायरमेंट्स देगा कि मुझे प्रोटीन इतनी चाहिए, मुझे कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए, मुझे विटामिन ये चाहिए, मुझे लिपिड इतने चाहिए, मुझे इतना वॉल्यूम में फ्लूइड चाहिए। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे या रिक्वायरमेंट क्या होती है, गाइडलाइंस क्या कहती है। लेकिन उससे पहले आज हम के लेक्चर में लैब में ये एंड करेंगे कि फार्मूलेशन के पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए कि कौन कौन सी फार्मूलेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब आपकी आज की ये एक लैब असाइनमेंट है ताकि नेक्स्ट में कैलकुलेशन हम करने आसानी होगी कि आपने देखना है कि प्रोटीन के लिए कौन सी फिनिश्ड प्रोडक्ट अवेलेबल है पाकिस्तान में। पर प्रोटीन मैं दो आपको बताता हूँ, आपने चेक करनी है, अमाइनोविल एंड अमाइनोप्लाज्मिन। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने गूगल करना है, देखना है अमाइनोविल की कंपोजिशन क्या है, उसमें प्रोटीन कितने % होती है, और प्रोटीन के अलावा क्या और चीज भी उसमें है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स या विटामिन है। अब आपने ये देखनी है अमाइनोविल अमाइनोप्लाज्मिल, गूगल करना है, उसकी कंपोजिशन देखनी है और ये देखना है कि वो कितनी एनर्जी भी देती है। एनर्जी भी उसमें लिखी होगी, क्या कार्बोहाइड्रेट भी है या नहीं। सेकेंडली फॉर कार्बोहाइड्रेट कौन से फिनिश प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। डेक्सट्रोज, you have 5% dextrose solution, you have 10% dextrose solution, you have 25% dextrose solution. Next thing what you have to do, आपने चेक करना है कि जी पाकिस्तान में क्या 5, 10, 25% के अलावा और भी कोई dextrose solution अवेलेबल है या नहीं। सेकेंडली कि ये कितनी एनर्जी देगा, 1 ग्राम डेक्सट्रोज कितनी एनर्जी देता है, और 5, 10, 25% डेक्सट्रोज सोल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी क्या है। आपने अमाइनोविल अमाइनोप्लाज्मिल की ऑस्मोलैरिटी भी देखनी है। फिर सेकेंडली आपने डेक्सट्रोज की जो सोल्यूशन है इनकी एनर्जी भी देखनी है और इनकी ऑस्मोलैरिटी भी देखनी है कि 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन की, 10% की, 25% की ऑस्मोलैरिटी क्या है। थर्ड जो कंपोनेंट है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप यूज कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड 0.9% NaCl नॉर्मल सलाइन यूज होता है। तो आपने इसका देखना है कि इसमें कितने MEQ सोडियम जा रहा है, 1 ml में है, और कितने MEQ क्लोराइड होगा। आई रिपीट, आपने नॉर्मल सलाइन की ऑस्मोलैरिटी चेक करनी है, फिर उसकी कंपोजिशन यानी वो 0.9% NaCl है, तो उसमें 1 ml या 100 ml में कितने MEQ सोडियम के होंगे। क्योंकि जब डोज पूछी जाती है ना, डॉक्टर कहते हैं कि मुझे जी 4 MEQ पर kg पर डे के हिसाब से इसको सोडियम देना है। अब 4 MEQ के हिसाब से देना है, फॉर एग्जांपल वेट है 10 kg, 40 MEQ आपने सोडियम देना है। कैसे देना है, आपके पास तो नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन की क्या कंपोजिशन है, 0.9% NaCl है। अच्छा वो तो जी 0.9 ग्राम इन 100 ml है। अब कितने ml में 40 MEQ सोडियम होगा, जब तक कि आपको नॉर्मल सलाइन की कंपोजिशन नहीं पता होगी कि कितने MEQ सोडियम होते हैं कितने ml में। ठीक है, या 1 ml में कितने MEQ सोडियम होते हैं, या 100 ml में कितने होते हैं। अब ये आपने कैलकुलेट करना है। फोर्थ थिंग अब आपने जो देखनी है वो पोटेशियम के लिए कौन सा है। आपने अभी असाइनमेंट रिसेंटली की थी इमरजेंसी ट्रे में, इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन की कंपोजिशन क्या है और उसकी 1 ml में कितने MEQ पोटेशियम जाता है।
क्योंकि पोटेशियम की डोज भी डॉक्टर इसी तरह कहते हैं कि जी मुझे 1 MEQ पर kg पर डे के हिसाब से पोटेशियम चाहिए। ठीक है जी, पोटेशियम हो गया। फिर कैल्शियम, आप लोगों ने कैल्शियम ग्लूकोनेट देखा है, इमरजेंसी ट्रे में होता है, दैट इज ए सोर्स फॉर कैल्शियम। अब उसको आपने देखना है, उसकी डोज अक्सर डॉक्टर पूछते हैं कि 300 mg पर kg पर डे से मुझे कैल्शियम चाहिए। तो आपने कैल्शियम की कंपोजिशन वो चेक करनी है कि कौन सी अवेलेबल है और उसमें कितने mg पर ml मौजूद होते हैं। ठीक हो गया जी। तो आज आपके लिए बेसिकली मैंने आपको जो लैब असाइनमेंट दी है, आपने इन सब की कंपोजिशन, इन सब की MEQ, इन सब की एनर्जी, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, और सॉरी एक और चीज ऐड कर लीजिए, लिपिड। लिपिड आपने चेक करना है कि पाकिस्तान में कौन सी फिनिश्ड फॉर्म में अवेलेबल है, उसकी कंपोजिशन। पाकिस्तान में 5% भी लिपिड इमल्शन अवेलेबल है, 10% भी है। दो फार्मूलेशन के नाम मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। लिपोसिन एंड लिपोफर्निन, लिपोसिन एंड लिपोफर्निन 5 और 10% लिपिड इमल्शन में ये अवेलेबल है। अब आपका काम ये देखना, इनकी ऑस्मोलैरिटी देखना, और 1 ग्राम लिपिड कितनी एनर्जी देता है, और वो जो लिपिड इमल्शन है वो पर एमएल उसकी एनर्जी भी लिखी होगी, ये कितनी एनर्जी दे रहा है ये भी आपने लिखी है। अब आप ये 5-7 कंपोजिशन की ऑस्मोलैरिटी, उनकी कंपोजिशन, उनकी एनर्जी, ये टेबल बनाएंगे। इसी चीजों को बेसिकली हमने मिक्स करना है एसेप्टिकली इन लेमिनर फ्लो हुड, और टीपीएन बना दिए। और इस मेथड टीपीएन को हम कहते हैं वेट मिक्सिंग। व्हेन वी हैव ऑल finished product, sterile finished product available with us, what we have to do, we will have a TPN order from the physician. We will calculate accordingly the requirement for a patient, and then we will just mix these already finished product available with us. For example, 50 ml हम अमाइनोविल के ले लेंगे, 100 ml डेक्स्ट्रो 10% के ले लेंगे, उन सबको एसेप्टिकली मिक्स करेंगे, आपकी टीपीएन बन जाएगी। आप कहीं भी होंगे, अगर आपको ये बेसिक कैलकुलेशन ये आती है, कोई भी फॉर्मुलेशन होगी आप टीपीएन कैलकुलेट कर लेंगे दुनिया में जहां भी होंगे। क्लियर? तो ये अब आपकी लैब असाइनमेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी कैलकुलेशन, जब आपको ये पता होंगी, आपके सामने होंगी, तो कैलकुलेशन मैं आपको करवाऊंगा, तो आपको कैलकुलेशन करने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों के ज़हन में हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ड्यूरिंग वेट मिक्सिंग जब हम लोग इन सबको मिक्स करेंगे तो इनका स्टेबिलिटी इशू नहीं आएगा? फॉर एग्जांपल ऑल इन वन हमने बनाई है टीपीएन, तो जब हम सबको लिपिड्स को और डिफरेंट चीजों को डिसॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा है। मैंने आपको बताया है कि इनकी स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि टीएनए आपने बनाना है, जब लिपिड और एक्वस मिक्स कर देंगे तो कौन से इश्यूज आ सकते हैं, ये मैं जब आपको कंपाउंडिंग करवाऊंगा तो बताऊंगा कि कॉलिसेंस कैसे होती है, कितनी रेशो हो तो कॉलिसेंस नहीं हो सकती, फिर कॉलिसेंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर अगर आप उसमें एक साइड पे कैल्शियम भी डाल रहे हैं, फास्फेट भी डाल रहे हैं, तो कैल्शियम फास्फेट प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है। तो रेशो कैसे रखनी है, कितनी कैल्शियम और फास्फेट की रखनी है ताकि प्रेसिपिटेशन ना हो। मिक्सिंग मेथड कौन सा अडॉप्ट करना है ताकि कॉलिसेंस ना हो। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन वो ना हो। तो ये चीजें इंशाल्लाह जब मैं कंपाउंडिंग पे जाऊंगा, कैलकुलेशन के बाद अगला स्टेप होगा, तो जरूर आपको बताऊंगा कि आप टीएनए बनाएं या 2-in-1 बनाएं। ठीक? यस सर। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के ज़हन में? सारे सो रहे हैं या सारे ऑनलाइन होके गायब हो गए हैं? नहीं सर, सुन रहे हैं आपको। नो सर। अच्छा, नेक्स्ट मैंने अब एक चीज, 2 चीजें मैं नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में आपके साथ या लैब्स में ऐड करूंगा। आप माशाल्लाह सारे ऑनलाइन होते हैं, अटेंडेंस सबकी लगती है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप बड़े पंक्चुअल हैं। अब ड्यूरिंग लेक्चर या लैब मैं किसी एक स्टूडेंट को बाय नेम उसको बताऊंगा कि जी आप ये कंपोनेंट रिपीट कर दें, तो आपको लाइव होना पड़ेगा। आप अपना माइक ऑन करेंगे और आप उसका आंसर देंगे, ठीक है, टू मेक दिस सेशन मोर इंटरेक्टिव। ठीक है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने भी काफी दिनों से वो कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए।
छोटी सी 4 से 5 मिनट की प्रेजेंटेशन किसी बच्चे को हम अलॉट करेंगे, तो वो जिस तरह जूम होगा उसमें उसको अलाउ किया जाएगा कि आप 3 से 4 मिनट की छोटी सी प्रेजेंटेशन आप अपनी दें। आप अपनी पावर पॉइंट बना के भी शेयर कर सकते हैं या लाइव मेरी तरह भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं? नो हैव अ सर, नाइस वीकेंड, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।